Good morning, sir. Good morning. Assalamu alaikum, sir. हेलो सर, गुड मॉर्निंग। Good morning, everybody. जी सर, आपको असाइनमेंट मिल गई थी मेरी? वो चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ। अगर ना हुई तो आपको कर दूंगा। अच्छा मैसेज। सर, मेरी 2 पेजेस से थोड़ी ज्यादा हो गई थी, 4 पेजेस तक चली गई थी। ठीक है, वैसे मैंने कोशिश किया था कि काफी प्रिसाइज करके लिखूं। ओके। Okay. Again, good morning, everybody. Uh, Today we will continue with our discussion regarding the uh, radio active materials, that is part of the nuclear analytical techniques. And up till now, we discussed about what is radioactivity and what are its units, and we defined various parameters, including activity, specific activity, then half-life. Then we also derived the rate equation, and from rate equation we performed different calculations. Uh, so the last thing to be done with this is carbon dating by determination of isotope ratios. So as we discussed in previous what is carbon dating is basically the ratio of carbon 12 with the carbon 14. Carbon 14 is radioactive, and we discussed that when an organic material is living, as we define the organic matter as the living matter, so as opposed to the dead matter. So we took the example of a tree. For example, if a tree is living, the ratio of the isotopes uh, carbon 12 and carbon 14 remains almost constant throughout its life. So when you chop off, when you cut it off, uh, then it becomes dead, and the radioactive carbon, which is carbon 14, that starts decaying. So as a result, the uh, carbon 12 to carbon 14 ratio is disturbed, and depending upon the half-life of carbon 14, it keeps on reducing after every half-life to its 50% value.
So today we will work with an example that a sample of wood has been taken from an ancient tomb which had an activity of 7.0 counts per minute, which is also known as decays per minute. Okay, so this activity is coming from which isotope? Carbon 14. As carbon 12 is a stable isotope, whereas carbon 14 is radioactive. So the very old piece of wood which was taken from somewhere that had the activity of 7.0 counts per minute, which is also known as decays per minute. So a similar sample of freshly cut wood of the same type of tree had an activity of 15.3. So the question is how to estimate the age of the wood of the ancient sample. So very simple, we will write down the rate equation in terms of half-life. And so the equation will be log natural 50 over 100. Why do we write 50 over 100? Ahmad Junaid, can you please let me know? In rate equation, why do we write ln, that is log natural 50 divided by 100 is So equal 50 divided so 50 divided by 100 is like equals to 1 by 2. So like we are taking half half of the life. substance. Yes. This defines the half life. Okay. Yes. So the t in that case will be half life. Okay. So log 50 over 100 is equal to minus k into half life, that is t half. Uh, this is the rate equation. So in this example, we will work out the value of rate constant. The half-life is given, that is 5,720 years. So we will just substitute the value of half-life in the equation. So 50 over 100 minus k into 5,720, that is years. अब जो आंसर आएगा, क्योंकि हमने उसकी लाइफ डिटरमिन करनी है पुरानी वुड की, तो वो भी ईयर्स में आएगा. तो यहाँ जो भी, ये आपने खास ख्याल रखना है व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग कि व्हाट इज द यूनिट. अगर यहाँ पे सेकंड्स हैं तो आंसर विल बी इन सेकंड्स, अगर मिनट्स हैं तो मिनट्स में आएगा, आवर्स हैं तो आवर्स में, डेज हैं तो डेज में, एंड सो ऑन. तो यहाँ पे ईयर्स हैं तो आंसर विल बी इन ईयर्स. ओके, तो इसका आप के, तो के इज इक्वल टू विल बी लॉग 50 यानी लॉग हाफ. तो इसका आप लॉग लें. तो इफ यू हैव कैलकुलेटर यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट. इसका लॉग लें और उसका आंसर आ जाएगा, उसको आप डिवाइड कर दें 5,720. तो that will give you the value of k. तो k की ये वैल्यू आ गई. तो इसका यूनिट क्या होगा? पर ईयर, ईयर रेज टू द पावर -1. अब क्वेश्चन इज कि हमने उसकी लाइफ मालूम करनी है. एंड व्हाट इज गिवन? गिवन इज के जो लास्ट उसकी रेडियो एक्टिविटी है वो 7 CPM और फ्रेश की है 15.3. तो उसी तरह आप इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे कि जो इनिशियल है उससे डिवाइड करेंगे और ये फाइनल वैल्यू है. तो 7.0 फाइनल वैल्यू
और डिवाइडेड बाय 15.3 दैट इज द इनिशियल वैल्यू जो कि फ्रेश ट्री की थी, तो इज इक्वल टू हाफ लाइफ दिस के आ गया आपका, और उसके बाद आपका ये टाइम। तो ये रेट इक्वेशन दोबारा हमने लिख दी। तो यहाँ से यू वी कैन कैलकुलेट टी। तो 7 को 15.3 से डिवाइड करें, उसका जो आंसर है उसका लॉग नेचुरल लें, और उसको फिर आप ये 1.2 से डिवाइड करके, और क्योंकि उसकी वैल्यू आएगी ये 7/15.3 है, तो अशारिया के बाद कोई वैल्यू आएगी तो उसका लॉग नेचुरल माइनस में आएगा, तो ये माइनस इस तरफ भी है, तो वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर प्लस में आएगा। तो ये 6982 ईयर्स इसका आंसर। तो दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला। तो पहले आपने रेट कांस्टेंट डिटरमिन करना है, फिर रेट इक्वेशन दोबारा लिखनी है, तो उसमें से आपने टाइम वर्कआउट करना है। तो इज दिस एग्जांपल क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर किसी को नहीं समझ आई तो वी कैन वर्क आउट अगेन। इज एवरीबॉडी क्लियर? जी, Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो सिर्फ आपने इसका वो लॉग नेचुरल आपने डिटरमिन करना, बाकी सिंपल अरिथमेटिक है, ज़रब तकसीम वो आपने कर ली। ओके, सो वी मूव नेक्स्ट। तो ये सारा जो हमने डिस्कस किया, रेट इक्वेशन, रेडियो एक्टिविटी, तो इसकी हमने वेरियस एप्लीकेशंस भी देखी कि हाफ लाइफ कैसे डिटरमिन करनी है, फुल लाइफ कैसे डिटरमिन करनी है, एंड सो ऑन। वेरियस कैलकुलेशंस हमने की, रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करना। तो ये सारी की सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ये एंड अप होती है व्हाट इज नोन एज न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। कि अगर हम न्यूक्लियर टेक्निक को यानी रेडियो एक्टिविटी को यूज करना चाहें एज एन एनालिटिकल टूल, तो उस टेक्निक का नाम है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। ओके, तो एज द नेम इंडिकेट, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन का मतलब ये है कि आपको पता है कि एक है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और देर आर सो मेनी अदर एलिमेंट्स जो रेडियो एक्टिव है, वो तो एक सीरीज है जिसको हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ऑल ऑफ देम आर नॉन एक्टिव, यानी नॉन रेडियो एक्टिव। तो द क्वेश्चन इज, कैन वी एनालाइज those elements which are not radioactive? तो ये इसका आंसर क्या होगा आपके ख्याल में? जी साइमा, आप बताएं। हेलो। Sir, question. हाँ जी, Sir, क्वेश्चन समझिए आप? व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन इज कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, पहले तो बात यह है कि रेडियो एक्टिविटी कैन बी यूज्ड एज एनालिटिकल टूल। ओके, तो अब जो ऊपर से बात समझ आ रही है वो तो ये है कि जो रेडियो एक्टिव होंगे उनको तो हम एनालाइज कर लेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज के मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो हैं वो तो नॉन रेडियो एक्टिव है, तो क्या हम उनको भी एनालाइज कर सकते हैं इस टेक्निक के जरिए? व्हाट इज द आंसर आपके ख्याल में साइमा? sir नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, कैसे? सर जिनको हम कर सकते हैं वो हो जाएंगे, तो बाकी के जो रिमेनिंग होंगे इस तरीके से। जो जो नॉन रेडियो एक्टिव है उनको हम रेडियो एक्टिव बना सकते हैं, कैसे? जी शाबाश सर। जी, कैसे बना सकते हैं? सर जो रेडियो एक्टिव होंगे यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो रेडियो एक्टिव होंगे
उनको हम उनको डिफरेंस कर लेंगे, डिफरेंस के हिसाब से नहीं निकाल सकते, लेकिन उससे सिर्फ हमें शायद ये पता चलेगा कि रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव। नहीं नहीं नहीं, जो नॉन रेडियो एक्टिव है उनको हम रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये कैसे बनाते हैं कि उनके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं। न्यूट्रॉन जो है, तो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से हम हाँ, न्यूट्रॉन की जब तो बम्बार्डमेंट फिर करेंगे तो फिर तो कर सकते जी, yes, तो द आउटकम में बी इन टू डिफरेंट वेज कि वो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के yes, अंदर कैप्चर हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियस विल बिकम हैवियर। तो जब वो हैवी हो जाएगा तो हैवी न्यूक्लियाई जो हैं दे डिसइंटीग्रेट, वो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। फिशन, जिसको हम कहते हैं फिशन। yes, sir. तो पहले फ्यूजन हुई, यानी कि न्यूट्रॉन उसके अंदर फ्यूज हो गया। फ्यूजन से के बाद फिर वो हैवी हो गया, तो फिर उसकी फिशन शुरू होगी। इस तरह से वो रेडियो एक्टिव बन। दूसरा जी एस्पेक्ट ये है कि जब आप किसी भी एलिमेंट को न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं तो उसका अपना ही जो न्यूक्लियस है वो टीयर अपार्ट हो जाता है, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है बम्बार्डमेंट के साथ ही, वेदर द न्यूट्रॉन इज अब्जॉर्ब, यानी फ्यूज हो या ना हो। तो वो उसके इम्पल्स से, उसके मोमेंटम से जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है उससे। तो ये दोनों सूरतें हैं। तो इसलिए ये टेक्निक का नाम है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। कि हम क्या करेंगे कि जो सैंपल है उसको बम्बार्ड करेंगे विद द न्यूट्रॉन, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, तो वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो अब वो जब रेडियो एक्टिव हो जाएगा तो फिर हम उसकी एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। तो दिस वे ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कैन बी एनालाइज्ड बाय न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो अब जो रेडिएशन है वो न्यूट्रॉन से हो तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। तो लेकिन सैंपल को आप अल्फा पार्टिकल से भी इरेडिएट कर सकते हैं। तो अल्फा पार्टिकल के अंदर भी न्यूट्रॉन होते हैं। बीटा पार्टिकल से भी आप इरेडिएट कर सकते हैं, गैमा रेडिएशन से भी। तो फास्ट मूविंग जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल, उनके साथ आप इरेडिएट कर सकते हैं। लेकिन जनरली न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, जिस तरह के नाम से जाहिर है, न्यूट्रॉन से आप बम्बार्डमेंट करते हैं। अब न्यूट्रॉन कहाँ से आते हैं, इसका कोई आइडिया आपको? न्यूट्रॉन कहाँ से लेंगे? फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। जी, दाऊद तनवीर। सर आई थिंक निकालने पड़ेंगे शायद। कहाँ से? बम्बार्ड एटम में से। ऐसे निकालेंगे? क्योंकि उसके हमें वो सेंट्रल पार्ट पे जाना पड़ेगा। नहीं, कैसे, क्या टेक्निक इस्तेमाल करें कि न्यूट्रॉन निकाले उसमें? सर भाई, रेडियो एक्टिव और बेटा ऐसा इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो यू विल सिलेक्ट ए न्यूट्रॉन सोर्स जो ऑलरेडी रेडियो एक्टिव है। ठीक है, जो ऑलरेडी रेडियो एक्टिव है, जिसमें से न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, वही आप एज ए सोर्स यूज कर लेंगे। तो दूसरा एलिमेंट जिसको आपने रेडिएट करना उसके सामने रख देंगे, तो न्यूट्रॉन तो उससे निकल रहे होंगे, वो उस पर बम्बार्ड होते जाएंगे। तो वेरी सिंपल टेक्निक। तो जो न्यूट्रॉन का सोर्स है वो रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, जो हाईली फिशनेबल होता है, जिसकी रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं एज ए सर न्यूट्रॉन ये चीज सोर्स। समझा दें, समझ नहीं आई कि हम समझ नहीं आई? वो हाईली रेडियो जो हाँ, न्यूट्रॉन होगा वो हम जिस तरह प्लूटोनियम है, कैलिफोर्नियम है, ये जो एक्टिनाइड्स हैं, एक्टिनाइड की सीरीज आपने देखी है पीरियोडिक टेबल में? ये पीरियोडिक टेबल आपको Yes. नजर आ रहा है?
यस सर। हाँ, इसके सबसे नीचे ये देखो, यस ये सर। जो सीरीज है, इसमें एक्टिनियम है, इसमें थोरियम है, इसमें यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमेरिशियम है। तो इसमें बहुत सारे ये रेडियो एक्टिव, जो नेचुरली रेडियो एक्टिव, तो इनमें से जो इजीली अवेलेबल है, लाइक कैलिफोर्नियम है, अमेरिशियम है, प्लूटोनियम है, तो एनी वन ऑफ देम कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स न्यूट्रॉन। तो अब ये न्यूट्रॉन का सोर्स इस तरह पड़ा है, ये फर्ज किया ये न्यूट्रॉन का सोर्स है, ये आपका एलिमेंट है, इसको आप सामने रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो न्यूट्रॉन जो है वो ऑटोमेटिकली बम्बार्ड होते जाएंगे इसके ऊपर, तो दिस विल आल्सो बिकम रेडियो एक्टिव। ओके, इस तरह से अब तक जी जी। जी। कोई क्वेश्चन आप? चलें, तो this is the phenomena you have understood how we can bombard any element by neutron, neutron coming from the neutron source, which is highly radioactive. Okay, तो irradiate करने के बाद फिर क्या होगा कि वो बजाते खुद रेडियो एक्टिव बन जाएगा, जिसको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो अब उसमें से कौन सी रेडिएशन निकलेंगी? आपको पता है, ये तीनों रेडिएशन, ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं टू सम एक्सटेंट अल्फा पार्टिकल, बीटा और गैमा वो देते हैं, लेकिन हर एलिमेंट की जो है वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है। कुछ ज़्यादा गैमा रेडिएशन देते हैं, कुछ ज़्यादा बीटा एमिट पार्टिकल एमिट करते हैं, कुछ अल्फा करते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑन डिफरेंट एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट में से गैमा रेडिएशन निकलती है, तो गैमा रेडिएशन को आप जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं किससे? ये जो रेडियो एक्टिव एक्टिविटी को डिटेक्ट करने का आला है उसको क्या कहते हैं, आपको पता है? जीएम ट्यूब। मल्टी चैनल एनालाइज। अब मल्टी चैनल एनालाइजर तो लिखा हुआ है, लेकिन आपने जो पहले पढ़ा होगा एफएससी की बुक में कहीं, सर गीगर म्यूलर ट्यूब। यस दैट्स राइट, गीगर मूलर काउंटर। तो वो भी एक क्रिस्टल होती है किसी एलिमेंट की, तो उसके ऊपर जब रेडिएशन पड़ती है तो वो फिर आपको फ्लैशेस देता है, लाइट की फ्लैशेस देता है, तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, बीप्स प्रोड्यूस करता है और काउंट्स भी आपको बताता है। तो जितने उसमें से निकलेंगे उतने उसके काउंट्स जो हैं, काउंटर इसीलिए कहते हैं कि वो इवेंट्स को, वो जो पार्टिकल निकल रहे हैं या गैमा रेडिएशन निकल रही है उसको काउंट करता है कि कितनी निकल रही है। तो जितनी किसी से रेडिएशन ज़्यादा निकलेगी, इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि रेडियो एक्टिविटी विच इज कमिंग आउट ऑफ द एलिमेंट इज द मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का यही फंक्शन होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अभी आपने समझ लिया कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे पता चलेगा कि जितनी उसमें से गामा रेडिएशन निकल रही है, ठीक है, इसका मतलब उतनी उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वी कैन प्लॉट ए कैलिब्रेशन कर्व against concentration against the intensity of gamma radiation, ठीक है। तो ये कैलिब्रेशन कर्व हो जाएगी। अब आपको पता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो तरह की एनालिसिस होती है, क्वालिटेटिव भी होती है। तो क्वांटिटेटिव तो हमने समझ लिया कि इसमें कंसंट्रेशन इज रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ गामा रेडिएशन। तो अब आप बताइए कि क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे हम करेंगे? जी, एनीबॉडी, कोई आइडिया? नो आइडिया? ये मैं अभी आपको बता, ये देखें, ये हम
ग्राफ ड्रा करेंगे लाइक दिस। तो गैमा रेडिएशन निकल रही है। तो गैमा रेडिएशन की जिस तरह आपने जो लाइट होती है यूवी और विजिबल लाइट, तो उसकी वो लैम्डा होती है। लैम्डा क्या होती है बोले? लैम्डा किसको कहते हैं? हेलो? वेवलेंथ। वेवलेंथ, ठीक है, यस। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बोले? Sir, number of waves passing हाँ, through वो a इसका point. इन्वर्स होती है, वेवलेंथ का इन्वर्स होती है। वेरी गुड, ठीक हो गया। तो अब जब आप रेड कलर कहते हैं, तो रेड कलर का आपको पता है कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे एंड होता है? उसमें कई वेवलेंथ आती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा बैंड होता है रेड कलर का, ब्लू कलर का, और इंडिगो कलर, वायलेट कलर, ऑरेंज कलर। तो इनके बैंड हैं। इसका मतलब है कि विद इन ए बैंड बहुत सारी वेवलेंथ होती है। इसी तरह हर एलिमेंट जो गैमा रेडिएशन निकाल रहा है उनकी वेवलेंथ में भी डिफरेंट, किसी की यहाँ आ जाएगी, किसी की यहाँ आ जाएगी, किसी की यहाँ, एंड सो ऑन। इस तरह से ये स्पेक्ट्रम, इसको हम कहते हैं गैमा स्पेक्ट्रम, गैमा रे स्पेक्ट्रम। ये बात समझ आ रही है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया एवरीबॉडी कि गैमा स्पेक्ट्रम क्या है? कि गैमा स्पेक्ट्रम ये है कि जिसमें जो वेवलेंथ है वो वेरी कर रही है गैमा एनर्जी की, गैमा रेडिएशन। तो जितनी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी एनर्जी कम होती जाएगी, और जितनी वेवलेंथ कम होगी, शॉर्टर वेवलेंथ, उतनी गैमा रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, एक एनर्जी है, एक इंटेंसिटी है। ये मैंने शायद आपको बहुत पहले बात समझाई थी कि क्या फर्क है इंटेंसिटी का और एनर्जी का। कैन एनीबॉडी? नूर फातिमा, आप बता सकती हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड इंटेंसिटी? जी, नूर फातिमा, आर यू देयर? Yes. हाँ, बताएं बेटा। जी, नहीं पता? से यस और नो। ओके, तो मैं समझा देता हूँ। जिस तरह आपके पास 100 वाट का बल्ब हो, तो वो दैट विल इमिट स्पेसिफिक वेवलेंथ लाइट की। तो 100 के बल्ब अगर एक कमरे में आपने एक बल्ब जलाया हुआ है 100 का, दूसरे कमरे में 10 बल्ब हैं, ईच वन ऑफ देम इज 100 वाट। तो अब बताएं कि वेवलेंथ, दोनों कमरों की वेवलेंथ में क्या फर्क होगा? सर वेवलेंथ सेम रहेगी। यस, लेकिन रोशनी ज्यादा आएगी जिसमें ज्यादा बल्ब लगे। तो ये जो रोशनी ज्यादा है, दिस इज नोन एज इंटेंसिटी, और जो वेवलेंथ है वो क्या बता रही है? एनर्जी। ओके, तो ये आपको बात समझ आ गई। तो अब ये देखें कि ये जो मैंने ग्राफ अभी बनाया है, इसमें आई पिक अप लेजर पेन। ये देख, तो इस तरफ जब हम जाएंगे तो इसका मतलब कि लैम्डा इज इंक्रीजिंग, यानी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और इस तरफ जाएंगे वाई एक्सिस की तरफ, तो क्या होगा? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो है दैट विल टेल यू द कंसंट्रेशन, कि जितनी रेडियो एक्टिविटी ज्यादा आ रही है, ठीक है, लेकिन उसकी एनर्जी, जो गैमा रेडिएशन की एनर्जी है, दैट विल बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द वेवलेंथ। ओके, तो अभी 10 मिनट बाकी है। तो तो इसका मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस फिर कैसे होगी कि हर एलिमेंट जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की गैमा रेडिएशन निकालेगा। तो अगर यहाँ पे पीक है तो इसका मतलब उसकी ये वेवलेंथ है, यहाँ पे पीक आ रही है, ये वेवलेंथ है। तो हर एलिमेंट अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ की गैमा, वो होंगी सारी गैमा रेडिएशन, लेकिन कुछ लो एनर्जी के
वो गैमा रेडिएशन होंगी, कुछ एलिमेंट जो है वो लो एनर्जी की गैमा रेडिएशन मिट करेंगे, कुछ जो है हाई एनर्जी की, यानी कि उनकी लैम्डा जो है वो शॉर्टर होगी। तो वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ विल डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस वहाँ से आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। जिस तरह आप यूवी विजिबल में अगर 275 के करीब आती है तो हम कहते हैं बेंजीन रिंग, ठीक है। तो अगर 280 आती है तो हम कहते हैं जी ये कार्बोनाइल ग्रुप है। तो इस तरह से डिफरेंट वेवलेंथ से वी कैन करेक्टराइज द मटेरियल, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन उसकी जो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू है, इंटेंसिटी की वैल्यू है, वहाँ से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में क्या होगा कि जो इमिटेड गैमा रेडिएशन है उसकी अगर आप एनर्जी मेजर करते हैं तो दैट विल गिव यू द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, और अगर आप उसकी इंटेंसिटी की तरफ जाते हैं तो दैट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ द मटेरियल, रेडियोएक्टिव मटेरियल प्रेजेंट। तो इस तरह से हम, तो अब व्हाट इज दिस मल्टी चैनल एनालाइजर, ये क्या चीज है? मल्टी चैनल एनालाइजर ये है कि जो साइमल्टेनियसली तमाम वेवलेंथ की गैमा रेडिएशन को स्कैन कर सकता है। ओके, दिस इज नोन एज मल्टी चैनल एनालाइजर। ओके, कि जिसके अंदर जितनी भी गैमा रेडिएशन चेन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इम्प्लीकेशन ये हुई कि अगर एक सैंपल है उसके अंदर 20 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनको आपने इरेडिएट किया न्यूट्रॉन से। अब क्या होगा कि वो 20 के 20 अपनी अपनी वेवलेंथ की गैमा रेडिएशन निकालेंगे। तो वो सारी की सारी साइमल्टेनियसली मल्टी चैनल एनालाइजर में जाएंगी, वो आपको ये स्पेक्ट्रम दे देगा। तो दैट मीन के 20 के 20 एलिमेंट की वो 20 पीक आ जाएंगी। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन से एलिमेंट हैं, विच इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, और उन्हीं की इंटेंसिटी से आपको ये पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट जो है ये कौन सा है और उसकी अमाउंट कितनी है, कंसंट्रेशन। तो दिस वे द न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस इज यूज्ड to determine the quality and quantity of the material. तो ये जो डिस्कशन हमने किया, आपको समझ आ गई इस बात की? जी बेटा, should we move forward? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. जी So now we move forward. So after this, ये another very important analytical technique, ये भी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। इसको भी हम न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक, वो जो अभी हमने डिस्कस की है वो है स्पेसिफिकली, वो भी न्यूक्लियर टेक्निक है, बट इट इज नोन एज न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। ओके, तो अब जो हम टेक्निक स्टडी करने जा रहे हैं ये भी न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक है, लेकिन इसका नाम है आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड। तो ये मेथड जो है इसकी खसूसियत की है, अगर मैं आपको क्विज में पूछूं कि व्हाट इज स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ दिस टेक्निक, तो ये टेक्निक जो है दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज एंड मोस्ट सेंसिटिव of all the analytical techniques used for elemental analysis. ये मैंने लफ्ज बोला है फॉर एलिमेंटल एनालिसिस, ये मॉलिक्यूलर वो एनालिसिस के लिए नहीं है। यानी आप ये नहीं कह सकते हाउ वी कैन कंपेयर एटॉमिक ऑब्जर्वेशन विद एनएमआर, ये नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि एटॉमिक ऑब्जर्वेशन जो है वो किस लिए यूज होता है, फॉर एलिमेंटल एनालिसिस, वेयरएज एनएमआर जो है वो मॉलिक्यूल की, वो मॉलिक्यूलर एनालिसिस। तो जब हम एलिमेंटल एनालिटिकल टेक्निक्स की बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं, जिसमें एटॉमिक ऑब्जर्वेशन है, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। तो उन तमाम एलिमेंटल एनालिटिकल टेक्निक ICP-MS है, उन तमाम में से आइसोटोप डाइल्यूशन जो मेथड है, दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव
सेंसिटिव से हमारी क्या मुराद है? जिसकी लिमिट ऑफ डिटेक्शन बहुत ही लो होती है यानी कि वो बहुत ही डाइल्यूट सैंपल को, बहुत ही कम क्वांटिटी को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो अब इस मेथड के ये स्टेप्स हैं, बड़ा बहुत ही आसान है। तो इसकी एनालिसिस यही होगी कि हम आइसोटोप्स को मेजर करते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो आइसोटोप को बेस्ट मेजर करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? साइमा आप बताएं। आइसोटोप को मेजर करने के, उनकी कंसंट्रेशन मेजर करने के 2 तरीके हैं। एक तो अभी हमने डिस्कस किया, कौन सा? बोले साइमा, आप बोले ना। यही वाला जो आप बता रहे हैं, न्यूट्रॉन आइसोटोप डाइल्यूशन एक्टिवेशन, मेथड। ठीक हो गया। और ओके सर। दूसरा मेथड क्या है? जी सर, जो मुझे आइसोटोप, नहीं पता। नहीं पता, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। हाँ, ओके सर। वो यस हर सर। आइसोटोप को वो उसका मास जो है वो डिटरमिन कर सकता है। तो ये दोनों टेक्निक थैंक जो यू। है इसमें यूज कर, अगर रेडियो एक्टिव है तो आप ये न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस यूज कर लेंगे मेथड, और अगर आपका नॉन रेडियो एक्टिव है तो फिर आप मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज कर लें। दोनों में आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड जो है वो यूज हो सकता है। तो स्टेप 1 ये समझ लें, ये बहुत ही आसान मेथड है। लेकिन इसकी मैंने बेसिक आपको बता दी कि इसमें आपने जो आइसोटोप्स हैं उनकी अमाउंट डिटरमिन करी। तो सबसे पहले आप सैंपल में से कुछ हिस्सा लेंगे, एलिकोट जिसको कहते हैं, टेक एन एलिकोट ऑफ द सैंपल, उसका वजन कर लें। वो है फर्ज किया m ग्राम। ओके, तो उसमें आपने टू दिस ऐड m प्राइम ग्राम ऑफ द रेडियो एक्टिव ट्रेसर। यानी जो आपने एलिमेंट फर्ज किया, आपने आयरन एनालाइज करना है किसी सैंपल में, तो उसी का रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है, यानी आयरन का ही जो आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव आइसोटोप आपने बनाया हुआ है, वो आपने डाल दिया। यानी सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने सैंपल लिया, उसका वजन किया, फिर उस सैंपल में जो एलिमेंट एनालाइज करना चाहते हैं उसी का ट्रेसर, उसको ट्रेसर कहते हैं, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, वो उसमें डाल, उसकी अमाउंट नोन होनी चाहिए। तो अब उसका वजन कितना हो गया टोटल? पहले आपने जो इनएक्टिव था वो लिया m ग्राम, तो अब उसका वजन हो गया m प्लस m प्राइम। यहां तक ये स्टेप 1 क्लियर हो गया? बेटा आप रेस्पॉन्ड करें जल्दी। यस Yes, sir. क्योंकि टाइम थोड़ा 1 मिनट रह गया। स्टेप 2, जब आपने उसमें ये दोनों को मिक्स कर दिया, यानी नॉन रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर रेडियो ट्रेसर जो है उसी एलिमेंट का मिक्स कर दिया, उसको मिक्स करें अच्छी तरह। ये स्टेप 2 है, मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद स्टेप 3, आइसोलेट द एनालाइट बाय प्रेसिपिटेशन। यहाँ केमिस्ट्री आ गई कि जब आपने फर्ज किया आयरन की, हम मिसाल को लेके आगे चलते हैं, तो जब आपने आयरन में रेडियो एक्टिव आयरन डाल दिया, अब जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या फर्क होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज में ये आपने बताना है जल्दी से। they remain the same. यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन जो है उसको अगर आपने प्रेसिपिटेट करना है तो उसमें कोई फास्फेट डाल दें, आयरन फास्फेट बन जाएगा, या आयरन कार्बोनेट बना लें, तो वो रेडियो एक्टिव का भी बन जाएगा, ट्रेसर का भी और नॉन रेडियो एक्टिव का भी, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा उस मिक्सचर में से। तो ये तीसरा स्टेप। अब उससे आगे हम चलते हैं, कैलकुलेशन। बस काम आपने इतना करना है। तो अब आप